Well, Jain Abhishek, welcome to Badass Officer Jain sir, Selection Board. Jain sir. So how are you? So I'm fine, sir. So are you? I'm great. I'm good. Same as well. And please share your experience, like what you've gone through right from beginning, like journey you took, the place you stayed 1 day before, 2 days, जो भी आपने journey की थी वहां तक नोएडा सेंटर पहुंचने के लिए. नोएडा में था राइट? Yes, sir. तो आप कहाँ से निकले थे, कौन से पॉइंट से कहाँ पहुंचे, और मुझे सब बताइएगा कि आपने कहाँ स्टे किया था. मतलब ये नहीं कहाँ, मतलब हॉस्टल, मतलब आपने होटल लिया था कि रिलेटिव के यहाँ आप रुके हुए, कैसे क्या है आपका जो भी स्टे है. एंड द नेक्स्ट थिंग वुड बी दैट आपके कितने बंदों ने रिपोर्ट किया था, राइट? Yes, आपने sir. उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया. एग्जाम से पहले से आप लाइन में खड़े हुए हो, कैसे जो मैंने आपको गाइड किया था पहले उस चीज़ का. प्लीज टू Yes, एक्सप्लेन sir. एवरीथिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. Yes, sir. So, sir, I basically hail from Lucknow, Uttar Pradesh, sir. So I am doing right now. I'm doing my masters in computer application, sir. This is my last year, sir, and I'm in my fifth semester right now. So I had a dream of joining the defense forces. Right now, I'm also preparing for CDS and AFCAT also. So I got an entry Coast Guard assistant commander. I was waiting for this opportunity for the past 2 years Awesome. because they were not taking out this form for general category. As I belong to a general category, so there was no opportunity for me for guys like us. So I this form I think in the month of June. So I was very happy to see this opportunity. I filled it, but I had no experience of SSB, PSB. I know all the procedures because of this YouTube and all this stuffs, but I didn't have any experience of this. I was a completely fresher. So one day I was practicing this. I know that PSB consists of OIR plus PPDT. So I was practicing saying this PPDT, but I was not aware of this OIR. I thought that it would be similar like that of Army, Navy, Air Force. SSB right? So yes, SSB, sir. Okay. So I practiced from many YouTube channels. I would not take the name. Okay, cool. No. So 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 this was hello. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I was practicing this all sets of OIRs from different YouTube channels. But one day my colleague Tarun, he informed me about he actually his PSB was on 4th or 5th of August in Kolkata. Okay. So he informed me that total 84 people candidate reported there, and out of which only 4 people got made it into this next round. मतलब That is your how many people reported? 80? 84, sir. 84 people reported. Then how many people made Yes, it to sir. OIR? And sir, only 4 people made it into OIR, sir. ओके, मतलब 84 में से 80 को वॉश आउट कर दिया, ओनली 4 बंदों को उन्होंने इन किया OIR रिटन टेस्ट में. यस सर. डर लगा और होगा सर फिर. 4 लोग सर 4 लोग को वो किया सर. तो मैंने तो सर मैं सोच कि सर मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता. मैं गया बाहर जब और मेरा दोस्त भी सर ही आल्सो डिड नॉट मेड इट. Okay. सो अब पता नहीं सर उसका आइडिया कि 4 लोग वो वहाँ पे कितने वो स्क्रीन इन हुए अंदर में वो नहीं मुझे पता. Okay. So he gave me this link of your YouTube channel. There's a YouTube channel named Badass Officer. You practice there. Okay. So at first I didn't take it seriously, sir. I was practicing from older YouTube channels only, sir. I would be very frank at it. So after 1 week of practicing, so I got a little bit nervous that only 6 to 7 people and 4 people are making it into the PPDT. So I got a bit nervous. So then I started practicing. My PSB was on 11th of August 2021, and just prior 1 week prior to my this OIR, I went to your channel, sir. I started practicing Now, it. what make you think So that you have to come that channel? So when you already have the other channels for teaching you also. What make you think that? Or someone told you that? that fear of rejection, sir. No, someone told you like that you have checked once. Yeah. I told you in the beginning, sir, कि my friend Tarun. told कि तरुण कि वहाँ पे आप जाओ वो बैडएस ऑफिसर से सेलेक्ट कर लेना मेन वो 7th section 7. I was not knowing that section does consists of what. Okay. I only know the concept, basic concept. मुझे पता था कि सेक्शन 7 में वहाँ पे आउट हो रहे हैं बेसिकली वहीं से है मेन जो चीजें हैं.
तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ, देखता हूँ एक बार जाके। तो जब मैंने आपका सर चैनल वो खोला सर, तो पहले तो मैंने सेक्शन 7 जब प्रैक्टिस करना शुरू हुआ, मेरे होश ही उड़ गए कि ये क्या है, ऐसे कैसे होता है ये। हाँ। और उसमें सर लिखा भी नहीं था सर। और सर 1x की स्पीड में सर मैं बोले मैं तो यार इसको कैसे करूंगा कंप्लीट, यही नहीं हो रहा, वहां जाके कैसे होगा। हम्म। तो उस टाइम तो सर फिर मैंने कमेंट सेक्शन आपका देखा, स्क्रॉल किया उसमें सर, उसमें आपने सर लोगों को समझा रखा था 0.75x पे करने के लिए। प्लस कुछ कुछ वीडियोस में सर 1x पे भी बोला था, डोंट रिड्यूस द वीडियो। दो वीडियोस में आपके हैं सर 22 वीडियो की प्लेलिस्ट है आपकी, वो सेट 7 की। एक नंबर रिकॉग्निशन वो जो है याद मेमोरी। रखने वाला, वो मेमोरी वाला इसे सर वो भी याद हो गए, मेरे वीडियो याद हो गए, इतनी देख लिया मैंने। गुड। और सर फिर उसके बाद ये सारी चीजें हो गई सर। तो सर कर लेता था, ऐसी बात नहीं है। स्टार्टिंग कर रहा था, मेरी थोड़ा मेरे को थोड़ा सा फीवर भी हो गया था बीच में। तो 3-4 दिन तक फीवर रहा, मैं और टेंशन में पड़ता जा रहा था मेरे कि ओ आई आर है मेरा। मैं तो गया बाहर। ओके। मैंने तो यहाँ तक घर पे भी सोचा हुआ था कि बोल दूंगा ओ आई आर क्लियर कर लिया है, और बाकी पीपीडीटी देखा, पीपीडीटी में आउट हो गया। पहले से ही मैं अजम्पशन बना के चल रहा कि ओ आई आर में मैंने क्लियर कर लूंगा, और पीपीडीटी बोल दूंगा कि भले क्लियर हो ना हो, ओ आई आर बोल दूंगा क्लियर हो गया था। थोड़ी सी शर्म घर में, यही मैंने सोच के कि झूठ बता दूंगा ऐसे ही। झूठ नहीं बोलना है कभी यस लाइफ सर। में यार। नहीं तो एक फियर आ जाता हाँ है, फियर क्या करता है आपको फिर वीक वही। बनाता है, राइट? देन यू विल नॉट तो एबल टू ऑपरेट 100%, यू नो, ऑन योर द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। नेवर लाइक। यस सर, एग्जैक्टली सर। सो फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, कम से कम प्रैक्टिस तो करते हैं, जितना बचा है टाइम जो भी हाथ में चीजें हैं। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया सर आपके वीडियो से। इनफैक्ट आपने सर कुछ कुछ वो भी बताए थे वर्ड फॉर्मेशन वाले। लास्ट वाले दिन आई वाज माय ट्रेन वाज ऑन 9th ऑफ अगस्त फॉर दिल्ली, दैट वाज लखनऊ मेल। तो मैं रात को मैंने बोर्ड किया ट्रेन को, 10th ऑफ अगस्त को मॉर्निंग में पहुंचाया। तो सर यू टुक अ गूगल मीट सेशन ऑन 9th ऑफ अगस्त एट 10 p.m. और 9 p.m. आई थिंक सो। यस। ऑन एंड तो ऑफ। आई ज्वाइंड इट। मैंने टेलीग्राम ग्रुप आपका ज्वाइन कर लिया था, मैंने वहाँ पे गूगल सेशन मीट पे आ गया मैं। तो आपने मेरे से आपने पूछा भी कि कहाँ ट्रेन में हो, मैं बोला हाँ सर। आपने ये भी बोला एसी में हो स्लीपर में हो, मैं बोला सर एसी में हो, तो कैमरा ऑन कर ले। तो मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया। फिर मैं सर अपना आपने जो जो बताते गए ये वो वर्ड्स ले लूँ सर वीडियो में नहीं नहीं नहीं, वर्ड्स नहीं लेना, जब वो सीक्रेट है। गाइस वन सेकंड, अच्छा गाइस अच्छा। देखो, जो भी मैं एक पीपीटी सेशन कंडक्ट करता हूँ उसमें पीपीटी में बच्चे एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है उनको। और सेकेंडरी थिंग ये है कि हम मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मुझे मिले हुए हैं, तो मुझे पता है वर्ड फॉर्मेशन के हैं। अब इस बंदे ने कैसे क्लियर किया है, अपना अभिषेक ने, इसने शायद लास्ट में 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं सेट 7 में, बट ही आल्सो मेड इट। 5 क्वेश्चन सर। 5 क्वेश्चन इसने छोड़े हैं लास्ट में, देन आल्सो मेड इट दैट टू बी कॉल्ड ऑन नंबर 1 एंड ही विल एक्सप्लेन इट हाउ, राइट? तो अभिषेक प्लीज करो। यस सर। सर तो सर वो सर आपने वर्ड्स बता दिए थे, तो मैंने तो उस टाइम सर नोट कर लिए। बट ट्रेन में नेटवर्क भी बहुत सा हेजी सा था सर, तो मतलब बार बार नेटवर्क कट ऑफ हो रहा था, गूगल मीट से भी मैं बाहर जा रहा था। तो आपने बोला भी था कि किसी को, दैट गाय ऋतिक, ऋतिक सेंड मी एंड उदित आल्सो सेंड मी दैट वर्ड्स लिस्ट कि ये आते हैं कंटेनिंग दिस लेटर एंड 5 वर्ड 4 वर्ड बी 8 6 वर्ड। तो वो सर था। प्लस सर एक और बात बोलना चाहूंगा सर, आपके चैनल ने मुझे मतलब वो उसको कहते हैं ना खींच के रखना या बांध के रखना वाली बात है। हम्म। तो योर स्टाइल योर एटीट्यूड, भले ही सर आप देते हैं थोड़ा सा सर डो सबको, गाली बट वाला ठीक डोज। है सर। हाँ सर, जो भी है सर, योर टीचिंग स्टाइल वाज डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर्स चैनल। ठीक है, बाकी चैनल्स में ये नहीं बोल रहा खराब है, बट यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ विद टाइम। एग्जैक्टली। तो वहां पे वहां पे जो चीजें हैं वो आज से 2 साल 3 साल पहले जो चल रही थी वो चीजें आउटडेटेड चीजें हैं। अब जिस चैनल से मैं पढ़ा था वो 3 साल पुराना था। और आज के करंट सिचुएशन में जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर मैं वहीं से प्रिपेयर करके आया था, अगर आई वुड हैव केप्ट एन ईगो इनसाइड मी कि मेरे को नहीं पढ़ना है आगे, मैं जहाँ से जो पढ़ रहा हूँ वो ठीक है, उतना मेरे को आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो आई वुड हैव नॉट क्लियर्ड इट। मैं सिंपली सर बहुत ही क्लियर वर्ड में बोल रहा हूँ, नहीं क्लियर कर पाता मैं ओ आई आर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ओ आई आर देने के बाद भी ये आइडिया नहीं था कि मैं क्लियर कर लूंगा। दूसरी बार वो भी फर्स्ट रैंक पे क्लियर करूंगा चेस नंबर 1 के साथ। जब मेरे को बुलाया तो मुझे लगा, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये जब वहां पे कि भाई ऐसा भी होता है, नंबर 1 जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया उसके बुलाते हैं चेस नंबर 1। तो सर फिर उसके बाद सर गया मैं, सुबह मेरी 10 बजे रिपोर्टिंग थी 11th ऑफ अगस्त को। 10th ऑफ अगस्त को आई स्टेड इन माई रिलेटिव्स हाउस। तो और एट मतलब शाम को इवनिंग में मेरे को 10th ऑफ अगस्त को
101.1 बुखार था। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। मेरे को 5 दिन से बुखार था। मैंने डॉक्टर को लखनऊ में दिखाया था 9 अगस्त को। नहीं, मुझे वायरल don't talk about fever and all because अच्छा सर, foreign situation. ओके सर। नहीं, आई हैड माय आरटीपीसीआर टेस्ट सर, इट वाज नेगेटिव सर। Okay, fine. सर वायरल था सर, तो सर मैंने भी सोचा हुआ था कि अगर नहीं होगा तो मेरे को बाहर से निकाल देंगे वो थर्मोगन से। टेंशन मेरे वैसे ही थी अंदर कि मुझे भाई अंदर बाहर कर देंगे वो तुरंत ही, मैं तो ओआईआर भी देने लायक नहीं रहूंगा। तो मैं गया वहाँ पे सर, फिर वहाँ पे कैंपस है अप्रोक्सीमेटली, मैं बाहर लाइन में था, 70 कैंडिडेट्स वर देयर। तो 72 मतलब इतने तो थे, बाकी 8 बजे भी रिपोर्टिंग थी वहाँ पे। तो 8 बजे वाले बंदे कितने थे मुझे नहीं पता। एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ पे स्टार्टिंग में। आपका आधार कार्ड लेते हैं, आरटीपीसीआर या फिर डॉक्टर से साइन वाला सर्टिफिकेट लेते हैं, और एक और लेते हैं कुछ था, एक था डॉक्यूमेंट मैं भूल रहा हूँ। बाकी वो तीनों डॉक्यूमेंट थे। एनएस की सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, फालतू में वो भगा देंगे, कोई मतलब नहीं है उनको कि कहाँ से आए हो, बीएडी तुम कोयम्बटूर से आ रहे हो, तुम कहीं आ रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं। वो सीधे बाहर कर देंगे, चले जाओ। यस सर। ससुराल आ गए हो हाँ सर। डॉक्यूमेंट सर बहुत ही सीधे शब्द में बोलते हैं वो, एकदम प्यार से बोलते हैं जाओ आप। तो फिर उसके बाद सर वेरिफिकेशन हुआ, फिर दे विल टेक यू इनटू अ वेरिफिकेशन रूम। मेरा बेसमेंट में था, नोएडा में बेसमेंट में ही होता है, वहाँ जाके बेसमेंट में लोगों ने वेरीफाई करवाते हैं अपने ओरिजिनल 10th 12th योर मार्कशीट्स, ऑल दी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स इन योर ग्रेजुएशन एंड योर प्रोविजनल डिग्री और ओरिजिनल डिग्री दोनों ही में है तो दोनों ही ले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ले जाना। बाकी आधार कार्ड वो वेरीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद सर वो भेज देते वेटिंग रूम में। थोड़ा सा सर उनका है सर बैठाने का, सर हमें तो बैठा दिया था सर रूम में उन्होंने। एक रूम में सर इतने बड़े ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी सर 4 6 6 7 7 पंखे बैठे हैं, फिर भी उसके बाद सर उन्होंने बंद करके रखा होता, कनेक्शन काटा हुआ था। गर्मी में सड़ रहे थे हम लोग 2 3 घंटे तक, 11 11:30 तक। उन्होंने सर स्टार्ट करवाया हमारा ओआईआर। उन्होंने बुलाया अप्रोक्सीमेटली 70 80 कैंडिडेट्स रिपोर्टेड देयर इन माय बैच। 80 people reported in your batch. Yes sir, 80 people reported in my batch, and they were taken into a room, AC room. It was a well furnished AC room. वहाँ पे सर उन्होंने हम लोग को, मैं कैंडिडेट्स को जो जिनकी विजन थोड़ी सी कम है और मतलब हाइट कम है, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर तो पॉसिबल हो तो आगे चले जाना, नहीं तो पीछे में तो दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, बड़ी क्या दिक्कता है, ऐसी बात नहीं है। और फिर उसके बाद बट जो सर आगे मैं बैठते तो होंगे उन एकदम, लोगों के पास ज्यादा एडवांटेज होता है, हाँ एडवांटेज तो रहता ही है एडवांटेज सर। रहता ही है। वो एडवांटेज सेक्शन 7 में मिलेगा सर उनको अच्छा, और एडवांटेज। बाकी में नहीं मिलता है? बाकी में तो सर मिल जाता, बाकी दिख जाता है सर, ऐसा कुछ है नहीं इशू। ओके। वो आराम से, ऑफिसर्स दे आर वेरी कूल एंड काम सर। वो उठने देते हैं, इनफैक्ट उठने भी बोलते हैं उठ के देख लो। अच्छा, इनफैक्ट वो रोकेंगे भी नहीं किसी को कि तुम छापो, या अगर छापने पे जाओगे, जब तक में तुम छापो वहाँ 5 क्वेश्चन पार। नहीं, छापने का कोई तो उसके फायदा बाद नहीं है ना, जब मान लो 80 में से हाँ आप बोल रहे हो 4 बंदे क्लियर कर रहे हैं। अगर मान लो 80 यस में सर, से अगर 70 बंदे क्लियर करें तो आप छाप सकते हो फॉर मोमेंट, राइट? यस सर। जब 80 में से 4 ही क्लियर कर रहे हैं तो वो उसमें 4 कहाँ लोकेशन में कहाँ बैठे हैं वो सर, आपको कौन सी नहीं लोग। पता, राइट? तो ये यू ये सब आप ही के ऊपर यस है, सर, वहाँ जाके प्रैक्टिस सब आपके मेरे ऊपर ऊपर है। ही। यस, तो प्रैक्टिस करके जाओगे, दैट्स व्हाट यू। प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस मैं बोलूंगा कि अगर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ये वो तभी कर सकते हो, वरना तो मुश्किल है कि ओआईआर से ही बाहर भगा देगा वो। दैट वुड बी अ वेरी डिप्रेसिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे सर बैठा देते हैं। फिर उसके बाद मेरे टाइम में 45 मिनट्स दिए थे उन्होंने, बड़े आराम आराम से दिए थे उन्होंने। इनफैक्ट दे वुड हैव 5 to 10 मिनट सेशन, चैट करेंगे वो तुम्हारे साथ, अच्छी बातचीत करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएंगे तुम्हें। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्टर पे। वहाँ पे सेक्शन 1 स्टार्ट होता है ब्लड रिलेशन और नंबर सीरीज के साथ। 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें, मिक्स्ड होते हैं, बेसिकली सीरीज के कम होते हैं। 30-70 का रेशियो मान के चल सकते हैं। 70% आर ऑफ ब्लड रिलेशन एंड 30% आर ऑफ और नंबर इस बार तो सीरीज। फिगर कंप्लीशन भी क्वेश्चन थे, फिगर कंप्लीशन सर, हाँ थे सर। एक एक क्वेश्चन वो होगा ना उसमें? हाँ, एक एक रोटेशन का मतलब उसमें था। फिगर कंप्लीशन है, 2 क्वेश्चन थे सर जहाँ तक। लॉजिकल रीजनिंग में ही आए थे वो क्वेश्चंस। साथ ही साथ सर वर्ड फॉर्मेशन के आए थे क्वेश्चंस। वो तो वर्ड फॉर्मेशंस में क्या ही बोलूँ सर, मुझे तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आंसर मुझे पता है पहले से। गाइस कोस्ट गार्ड वाले, सेशन में ना सब बता देते हैं लोग
कितने हाँ 22 लोग सर, थे मैं उस दिन? पहले 22 लोग थे सर। राइट, मैं लास्ट में वो बताऊंगा कि कैसे वो बेनिफिट किया इन लोगों को। अगर वो सेट, अगर वो नहीं कर पाता ना ये वर्ड फॉर्मेशन, ये कि जो भी बंदे करके गए थे और सेट 7 नहीं कंप्लीट होता तो बस अच्छे से काम हो जाता आई था। थिंक मेरा वर्ड फॉर्मेशन को ही मुझे मुझे एज मिला, जो मेरा नंबर 1 आया है। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस मेरी कम हो गई थी, क्योंकि मैं आई वाज हैविंग अ फीवर, आई वाज नॉट वेल। तो मेरा सेक्शन 7 में उतनी प्रैक्टिस नहीं, भले ही मैंने प्रैक्टिस की थी दिमाग से, बट वो एक होता है कि पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करना, वो अलग होता है थोड़ा सा। फास्ट, काफी फास्ट होना पड़ता है। इनफैक्ट मैं वहां पे बाहर बैठा हुआ था मॉर्निंग में, कोस्ट गार्ड के ऑफिस के बाहर, वहां पे मेरे पास 2 फोन थे। तो मैं चला लिया था सर का प्लेलिस्ट सेक्शन 7 का, और वहाँ पे मेरे पास पेन पेपर तो था नहीं। तो मैं वहाँ पे सर का एक साइड से प्लेलिस्ट चला 0.75 है, एक साइड से मैंने अपने अल्फाबेट्स वाले खोले हुए व्हाट्सएप में अपने आपका अकाउंट का, और वहाँ पे मैं मेंशन अपना ABC या सारे ऑप्शन डालते जा रहा हूँ, जो जो मुझे दिख रहा है जितने काउंट करके, मतलब अच्छा, आप मैं वो कर लिख भी रहे थे साथ में? लिख नहीं पा रहा था सर, कॉपी और पेन कहाँ खोलता है रोड पे सर। मतलब तो मैं आप सर, देख जा रहे थे ना बस उसको पढ़ते हुए? हाँ देख रहा था। तो मुझे कैसे पता चलता कि मैं सही जा रहा हूँ। तो मैंने सर दूसरा फोन ले लिया सर, उसमें सर मैंने अपने अल्फाबेट्स वाला टाइपिंग वाला खोल लिया कीबोर्ड। और सर उसमें अल्फाबेट्स को मैं टाइप करके, मतलब जो भी ऑप्शन था ABCD, मैं A क्लिक करके सेंड कर देता था। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता था, फिर उसको देख के B सेंड कर दे, ऐसे करके। बहुत कॉम्प्लेक्स तो था सर, सर। हाँ सर थोड़ा सा था। फिर मैं मैच भी करता था आंसर, ऐसी बात नहीं उसमें 2-3 गलत हो जाते थे, बट नहीं, मिस भी हो जा मैच रहे थे। मैच उसमें करने की जरूरत नहीं है, ये है कि आपका एक बार फ्लो बन जाएगा ना नॉर्मल स्पीड पे, हाँ तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में थोड़ा सा डाउन आएगा। लेकिन ये कि आपका ये कि क्वेश्चन आपने पढ़ा और इमीडिएटली आपने आंसर देखा, पढ़ा आंसर देखा, पढ़ा यस, आंसर देखा, लाइक दैट यू विल, यस सर। दिमाग में एक बार हो जाएगा ना, 10-12 वीडियो देखोगे। दिमाग में वही सर, वो एक्सरसाइज कर रहा था कि मेरे को एग्जैक्टली। वहां पे भी ऐसे ही हो जाएगा। 11th अगस्त को सर मैं मेट्रो में भी, इनफैक्ट आपने वो वर्ड रोटेशन वाले, मेरे रोटेशन वाले डाले थे आपने वीडियोस, 2 वीडियोस डाले। दूसरी वीडियो में 2 थोड़े से गलत थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट 2 वीडियोस थे। तो दो मेरे वीडियो रोटेशन में का भी मैंने, सेकंड वाले में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 9 रॉन्ग हुआ, तो वीडियो इमीडिएटली निकलवा दी थी हाँ सर, हाँ मैंने, निकलवा निकलवा दी के थी उसको आपने। नया डलवाया मैंने। तो हाँ भी और तो आपका सर वो भी मेरा एक था कि सर अगर मैं उसको नहीं प्रैक्टिस करता, तो कहीं ना कहीं OIR में फर्क पड़ता। क्योंकि ठीक है, आप कितने भी अच्छे हो, ये चीजें थोड़ी सी एक बार सबकी चीज का नॉलेज होना चाहिए।